Thank you, Eski. It's a pleasure being here today on this very special occasion, the foundation day for this institution which has built up over the last decade. And it's a pleasure being here with all the moderators, all the panelists for the session, which I am a moderator. I can tell you one thing, as I was talking to Dr. Pooja just before, as I walked across different factories across the last few years, there's so much of an excitement I see on the electronic shop floor. It's absolutely crazy. A lot of times there are people who are naysayers who question what's happening in India, but let me tell you, it's an amazing revolution that is shaping up in our electronics sector. The electronics manufacturing is here today, and we are at an exciting threshold where the semiconductor and the component industry is going to take a step up and rise to sync in with that and create an additional value addition for the nation. So if I actually take a look at it, we have proof points of what we can do. A lot of times there are people who question whether we can have our own semiconductor projects in India, whether we can have our own manufacturing out here, and take a look at what's happening in. And as our Honorable Prime Minister has been espousing and exhorting us that during the Amrit Kaal we need to move in the value chain by going higher level of skillings, and also if you see the budget, the way the skilling ministry, our Kaushal Vikas Yojana has been announced, international centers have been announced. I request Shri Amit Manwani to please do the honors. Now I would like to request Shri Atul Kumar Tiwari ji, Secretary, Ministry of Skill Development and Entrepreneurship, to kindly come and give his address. Yeah, I feel very happy and excited today to be here, and also very grateful to SK for giving us an opportunity to sign the MOU. I think this is going to be a wonderful beginning where we can reach out to our youth, especially not only to Manipur but the northeastern region as a whole, and also to the neighboring countries. Scaling is very, very important right now, and we really want to prepare our youths for the demands the market is asking for. And I think SK will and the Governor of Manipur will have a wonderful journey together. This is what we've been doing when we skilled our youths. Is basically not only for the overseas only, but for the domestic market also. And this is what we are really trying to focus. We also giving a lot of importance on the language skilling also, where we are planning, already we've started with Korean language in some of the institutions in Manipur. We are also planning with Japanese and Chinese, etc. And more such languages also will be in the pipeline, because we felt that when you skill our youth, you have to prepare as per the language, as per the culture of that particular area also. So this is what we believe, and we are really looking forward. And thank you so much, all of you. Thank you. काउंसिल थी 10 साल पहले इसकी स्थापना हुई थी, तो ये बड़ा खुशी का मौका है कि हमने इतनी लंबी जर्नी पूरी की है, और हम ये आशा करते हैं कि आगे कई दशकों तक इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर काउंसिल जो है लोगों को स्किल सेट प्रोवाइड करती रहेगी और देश को उन्नति के पथ पर ले जाएगी। उसके कई कारण हैं, जैसे आज जब पैनल डिस्कशन हुआ था तो ये बताया गया था कि अनफॉर्चुनेटली आज से करीब 20-25 साल पहले इंडिया ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ एक ट्रीटी की थी, जिसमें सारे प्रोडक्ट जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स थे खास करके वो ज़ीरो ड्यूटी पे आने लगे थे। उससे क्या हुआ कि यहाँ की जो मैन्युफैक्चरिंग थी वो बिल्कुल ख़त्म हो गई, क्योंकि हमारे यहाँ इतनी डिमांड नहीं थी, तो लोग बाहर से सस्ते में लाते थे। तो उससे क्या हुआ कि पिछले 10-20 सालों में जो है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बिल्कुल ख़त्म हो गई। लेकिन अब सरकार ऐसी स्कीम्स लाई हैं जिससे वापस मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है। और मेरा ये मानना है कि वो जो स्कीम्स लाई गई हैं, जैसे PLI स्कीम है, प्रोडक्शन इंसेंटिव स्कीम है, जो मैन्युफैक्चरिंग लगाने के लिए जो बेनिफिट दिए जा रहे हैं, उससे वापस हमारा देश मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर देगा। और जब मैन्युफैक्चरिंग शुरू करेगा तो वो जो स्किल सेट्स जो हम देते हैं वो लोग बाहर चले जाते हैं, वो यहीं पे काम करेंगे और हमारे देश को बढ़ाएंगे। हाँ, तो वही मैं कह रहा था कि इस सरकार ने अब
ऐसी स्कीम्स निकाली हैं जिससे कि यहाँ की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिले। और सरकार एक और बात कर रही है कि जो हमारा पहले डिमांड अलग अलग से था कि रेलवे अलग से अपनी डिमांड बनाता था, कोई और मिनिस्ट्री अपने अलग से डिमांड बनाती थी, अब सरकार जो है डिमांड एग्रीगेशन कर रही है। और जब डिमांड एग्रीगेशन होती है तो डिमांड का वॉल्यूम बढ़ जाता है, तो उससे जो लोकल जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होंगे उनको बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि उनको ज़्यादा डिमांड मिलेगी तो उनका स्केल ऑफ ऑपरेशन बड़ा अच्छा हो जाएगा, तो वो भी कम्पिटिटिव हो जाएंगे। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया जो है वो 19 दिसंबर 2012 में उसका गठन हुआ था। और उसका गठन इसलिए हुआ था क्योंकि ज़रूरत थी इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के अंदर में, जैसे आजकल हम बात कर रहे हैं मेक इन इंडिया की, बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ में जो डिमांड बढ़ रही है, इसीलिए 6 मेजर इंडस्ट्रियल एसोसिएशन जो हैं वो साथ में आई नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के अंडर में, और मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट के अंडर में इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर स्किल काउंसिल को जो है बनाया गया। हम लोगों ने अपने 10 साल पूरे किए हैं। इस 10 साल के अंदर में 18.5 लाख से ज़्यादा बच्चों को इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर में ट्रेनिंग दी गई है। हमारे पास में जो है करीब 4,500 से ज़्यादा सेंटर्स हैं अक्रॉस इंडिया, और हम लोग जो है 577 डिस्ट्रिक्ट्स में काम करते हैं। इसका मतलब कि सिर्फ शहरों में ही नहीं बट गांव-गांव के कोने के अंदर में भी इलेक्ट्रॉनिक्स से रिगार्डिंग ट्रेनिंग दी जा रही है। हम लोग मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट के साथ में इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी की ESDM कैपेसिटी बिल्डिंग स्कीम चलती है, उसके अंदर में हम लोग कार्यरत हैं, जिसमें 1 लाख से ज़्यादा बच्चों का इन 10 सालों के अंदर में ट्रेनिंग किया गया है। इंडस्ट्रीज़ के साथ में उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कि उनको किस तरह के स्किल लोगों की रिक्वायरमेंट है, उसके लिए हम कोर्सेज बनाते हैं और इंडस्ट्री के साथ मिलकर उनको ट्रेनिंग कराते हैं और उनको जॉब्स दिलवाते हैं। इसलिए हम बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ के साथ, ऑलमोस्ट 3000 इंडस्ट्रीज़ के साथ हम लोग काम करते हैं। 1 लाख से ज़्यादा बच्चे पिछले 3 साल के अंदर में नेशनल अप्रेंटिसशिप स्कीम आपने सुना होगा, जिसके अंडर में इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर स्किल काउंसिल के थ्रू जो है वो कार्यरत रहे हैं। आने वाले समय में हम देख रहे हैं कि 10 साल तो हमारा एक पहला पड़ाव है, बट आने वाले समय में फ्यूचर टेक्नोलॉजीज़, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा, IoT, ड्रोन्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, सेमीकंडक्टर एंड कंपोनेंट्स, ये सब ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें आने वाले समय में बहुत रोज़गार आने वाला है। तो हम बिल्कुल मानते हैं और हमारी जिम्मेवारी है इस बात के लिए कि जो भी इंडस्ट्रीज़ इंडिया में आके काम करें उनको हम स्किल्ड मैन पावर दे सकें। आज इसीलिए हमने पहला पड़ाव पूरा किया, अपना फर्स्ट डिकेड हमने कंप्लीट किया 10 साल का, एंड वी लुक फॉरवर्ड कि इस जर्नी को, इस ग्लोरियस जर्नी को आने वाले सालों में हम इसी तरह से बढ़ाते रहें।